Hello, good morning, students. Students, as you know that we have started the lesson number 16, life in the northern mountains. Okay, so in yesterday's topic we discussed about the state of Uttarakhand. Okay, after that we discussed about the state of Sikkim. Okay, after that we discussed about the northeastern states. Okay, we started the northeastern. We started discussing about northeastern states. So in northeastern states, we discussed that there are 7 states. Okay, and these states are Assam, then Meghalaya. Okay, Meghalaya. After Meghalaya, Arunachal Pradesh. Nagaland, Manipur, Tripura, okay, and the last one is Mizoram. Okay, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura and Mizoram. Okay, and we studied that these states are known as 7 sisters. Okay, so yesterday we discussed about one northeastern state, that is Assam. Okay, so if we say that yesterday we discussed about the 3 states, that is Uttarakhand, Sikkim and Assam. Okay, Uttarakhand is a newly made state, okay, which came into existence on it came into existence on 8th of November 2000. Okay, it came into existence on 8th of November 2000. Before it was a part of the Uttar Pradesh state. Uttar Pradesh state. Okay, Uttarakhand was part of the Uttar Pradesh state, and on 8th of November 2000 it became a separate state. Okay, it has its own state government. Okay, it has its own you can say on crops likewise. Okay, so we studied that the Uttarakhand, the capital of Uttarakhand is Dehradun. What is the capital of Uttarakhand? Uttarakhand capital, the Dehradun is the capital of Uttarakhand. Okay, after that we discussed about the Sikkim. Then Sikkim is what is the capital of Sikkim? Gangtok. Gangtok is the capital of Sikkim. And what is the capital of Assam? Dispur is the capital of Assam. Okay, and if we talk about Sikkim, then Sikkim has the third highest peak in the world. The third highest peak in the world lies in Sikkim. And what is the name of that peak? Kanchenjunga. Kanchenjunga. Kanchenjunga is the third highest peak in the world, and it lies in Sikkim. Okay, and we also discuss about the crops that grow in Sikkim, the language
the people of Sikkim speak. Okay, and the dress they wear. Okay, what type of dress they wear? They wear the colorful hand woven clothes, and women wear long skirt called boku. Okay, and what crops they grow? They grow rice, wheat, maize, barley, potatoes, etc. Okay, and one more thing, Sikkim is famous for its orchards. We discussed that Sikkim is famous for its orchards, and there are orchards of oranges and bananas. Okay, so this is all about Sikkim. Okay, after that we discussed about the state of Assam. As I already told you that the Dispur is the capital of Assam. Okay, and Assam is divided into 23 districts. Okay, Assam is divided into 3 districts, and there are 45 different languages. 45 different languages have been spoken there. Okay, the people of Assam speak 45 different languages. Okay, and what crops they grow? What is the occupation of the people of Assam? Their occupation is farming. Okay, and what crops they grow? They grow rice, jute, cotton, sugarcane, oilseed, and potatoes. Okay, and one more thing that they grow is tea. Tea is the famous crop of Assam. Okay, you all know that tea is the famous crop of Assam. Okay, and the people of Assam speak Assamese. What language they speak? Which language they speak? They speak Assamese language. Okay, and after that we discussed about their dress, and their dress is same as that of the Sikkim. Like the people of Sikkim, the people of Assam are in you can say that the women of Assam wear long skirt, which they called makhela. Okay, what they call the long skirt? Makhela, and with makhela they wear the shirt, which they called riha. Okay, makhela and riha. Okay, this is their dress, and they celebrate the festival of Bihu. They celebrate the festival of Bihu. Okay, so this is all about the state of Assam. Okay, now today we will discuss about the remaining 6 states which are northeastern states. Okay, we had discussed only one state, that is Assam, yesterday, and now today we will discuss about the next, or you can say that the remaining states. Okay, so the next northeastern state is Meghalaya. Okay, this is the next northeastern state. Okay, so
आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेघालय स्टेट के बारे में। मेघालय स्टेट जो है, मेघालय मीन्स, व्हाट डज मेघालय मीन्स? मेघालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। मेघ का मतलब होता है क्लाउड्स एंड आलय मतलब अबोर्ड। अबोर्ड क्या होता है? अबोर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं निवास या घर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बादल जो है वो कहाँ? मेघालय में, मतलब उनको, मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है कि यहाँ पे क्या है? बादलों का निवास है या घर है, ठीक है। एंड यू कैन वी आल्सो नो दैट मेघालय इज हिली स्टेट। ये भी क्या है? हिली स्टेट है, क्योंकि हम माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो ऑब्वियसली जो भी स्टेट हम पढ़ेंगे वो माउंटेनियस स्टेट होगी या हिली स्टेट होगी, ओके। सो मेघालय इज आल्सो हिली स्टेट। ये भी क्या है? एक पहाड़ी स्टेट है, हिली स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स जो हैं, जिसे हम मेघालय का पार्ट भी बोल सकते हैं उन हिल्स को, यहाँ पे हैं। कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं? गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है। कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं यहाँ पे? गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स जो हैं वो क्या है? मेघालय स्टेट का एक पार्ट है, ओके। एंड मेघालय की कैपिटल क्या है? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मेघालय की कैपिटल क्या है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, okay. And after that, if we discuss about the climate of Meghalaya state, then you can say that Meghalaya has the wet climate, okay. Why wet climate? Because we already told that Meghalaya is known as the abode of cloud, okay. There are so many clouds, and that's why uh, you can say that due to the clouds, this state gets heavy rainfall, and so the climate of the Meghalaya state is wet, okay. And Cherrapunji and Masinram, ओके, ये दो प्लेसेस हैं मेघालय में। और आप सभी को पता है कि चेरापूंजी में क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ओके। तो चेरापूंजी कहाँ पे है? चेरापूंजी जो है वो मेघालय स्टेट में है, ओके। इसीलिए जो वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेट होता है। क्यों वेट होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो सबसे वेटेस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं? चेरापूंजी एंड मासिनराम, ठीक है। उसके बाद है कि जो पीपल हैं, मेजोरिटी में जो लोग हैं वो क्या हैं? वहाँ के लोग ट्राइबल्स हैं। क्या हैं? ट्राइबल्स हैं, ओके। एंड जो फेमस ट्राइब है वहाँ की, वो कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? गारो एंड खासी, ठीक है। दो मेन ट्राइब्स कौन कौन सी हैं वहाँ की? गारो एंड खासी, ठीक है। और ये वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल किसके? ट्राइबल्स हैं, और वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड है, ठीक है ना। तो हर ग्रुप जो है वो उसकी क्या है? अपनी अपनी लैंग्वेज है और अपने अपने उनके कस्टम्स हैं। कस्टम होता है रीति रिवाज, ठीक है ना। हर कोई अपनी अपनी भाषा बोलता है, अलग अलग भाषा जो है, हर ट्राइब की अपनी अपनी भाषा है और अलग अलग उनके क्या हैं? कस्टम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए कि वो किस चीज़ के शौकीन हैं, तो these peoples are fond of wearing colorful clothes, उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, उन्हें सिंगिंग का शौक है और डांसिंग का शौक है, ठीक है। किस चीज़ का शौक है? उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक है, सिंगिंग का और उसके बाद डांसिंग का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द स्टेट ऑफ मेघालय। After that, we'll discuss about the next state,
that is your next state is Arunachal Pradesh. Okay, the next state is अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक हिली एरिया है और यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ पे जो है कम पॉपुलेशन है. ठीक है, यहाँ पे कितनी थोड़ी ही मतलब ये जो है कम पॉपुलेशन वाली स्टेट है और इसका जो एरिया है वो कितना है 83,573 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, कितना एरिया है इसका 83,573 स्क्वायर किलोमीटर. एंड अरुणाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 15 डिस्ट्रिक्ट्स. कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है अरुणाचल प्रदेश? 15 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है. ओके, एंड इसकी कैपिटल कौन सी है? कैपिटल क्या है इसकी अरुणाचल प्रदेश की? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर. क्या है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल? ईटानगर. ओके, अब ये तो आ गई कैपिटल की बात, डिस्ट्रिक्ट की बात, एरिया की बात. ठीक है, अब जो अरुणाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे. क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ के लोग भी ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं. ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं. उसके अलावा उन वो और क्या क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर. ठीक है ना, एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी बोलते हैं. ठीक है, फार्मिंग आ गई, फिशिंग आ गई एंड हंटिंग आ गई. वहाँ के लोग क्या काम करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग करते हैं और हंटिंग भी करते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने बात की मेघालय की कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं. सेम जैसे ही सेम जो है अरुणाचल प्रदेश में है. अरुणाचल प्रदेश में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं वो पाई जाती हैं. डिफरेंट ट्राइब्स पाई जाती हैं. ठीक है, और हर ट्राइब का क्या है, अपनी लैंग्वेज है, अपना ही उनका कल्चर है और अपनी ही उनका जो है ड्रेस है. हर ट्राइब का अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपना अपना उनका कस्टम है और अपनी अपनी उनकी क्या है, ड्रेस है. ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आ जाती है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? हमने कहा कि वो फार्मिंग करते हैं. ठीक है, बट वो कैसी फार्मिंग करते हैं? वो करते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग. शिफ्टिंग फार्मिंग, जिसको क्या बोला जाता है? झूमिंग बोला जाता है. ठीक है, अब शिफ्टिंग फार्मिंग होती क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो शिफ्टिंग फार्मिंग होती है वो क्या होती है कि वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो ट्राइब्स में रहते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी जैसे जंगलों में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एरिया ले लिया, उस एरिया के उन्होंने पेड़ पौधे वगैरह काट दिए और उस एरिया पे क्या करेंगे, फिर वो एग्रीकल्चर करेंगे. ठीक है, जब तक वहाँ की सॉइल फर्टाइल है तब तक वो क्या करेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे. और जब वहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे जाके वहाँ के पेड़ वगैरह काटते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके फार्मिंग करना. ठीक है ना, पहले एक जगह पे फार्मिंग कर ली, फिर जब वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रही, फिर दूसरी जगह पे जाके मतलब छोटे छोटे एरियाज बना के ये लोग क्या करते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं. ठीक है, और फार्मिंग से ये लोग कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश में लगाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश के लोग राइस लगाते हैं, मेज़ लगाते हैं, मिलेट्स लगाते हैं एंड टोबैको लगाते हैं.
कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? राइस लगाई जाती है, मेज लगाई जाती है, मिलेट्स लगाई जाती है, तंबाकू जो है वहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं? वाइल्ड बफेलो को पालते हैं। ठीक है, जिसको उनकी भाषा में क्या बोला जाता है? मिथुन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिथुन बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका नाम अरुणाचल क्यों पड़ा? अरुणाचल का मतलब क्या है? ठीक है ना, तो इस स्टेट का नाम अरुणाचल इसलिए पड़ा क्योंकि जब इंडिया में सनराइज होता है तो सबसे पहले वो कहाँ पे दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए इसका नाम जो है अरुणाचल प्रदेश पड़ा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल्स हैं वो पूरा साल मनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फेस्टिवल्स क्या करते हैं, वो उसको फेस्टिवल्स को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं कि फेस्टिवल्स जो है वो होने चाहिए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, पूरा साल कोई ना कोई फेस्टिवल जो है वो मनाते रहते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो ज़्यादातर फेस्टिवल्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। किससे रिलेटेड होते हैं? वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ईटानगर है। ठीक है, मेन पॉइंट्स आ गए ये इसके। ईटानगर इसकी कैपिटल है, और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है? ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिवाइड है। एंड इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 83,573 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? यहाँ पे लगाई जाती है राइस, मेज, मिलेट्स, टोबैको एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? वाइल्ड बफेलो को टेम करते हैं, पालते हैं घरों में वाइल्ड बफेलो, जिसको मिथुन बोला जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, now next come to the another state, that is the state of नागालैंड। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? नागालैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो नागालैंड भी क्या है? हिली स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है यह भी। ठीक है, कैसी स्टेट है? पहाड़ी स्टेट है, और यहाँ पे क्या है? ये कैसी है? थिकली फॉरेस्टेड। थिकली फॉरेस्टेड, थिकली फॉरेस्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। थिकली बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, और जिनकी वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतने ज़्यादा क्या वाइल्ड एनिमल्स पाए जाएंगे। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स आप सभी को पता है कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट जो है वो उनका घर होते हैं, है ना, तो इसलिए जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतने ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स पाए जाएंगे। तो नागालैंड जो है, नागालैंड एक हिली स्टेट है, और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, और इसी वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोहिमा? सॉरी, नागालैंड। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ठीक है, एंड द people of Nagaland are called नागास। जो नागालैंड के पीपल हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको नागास जो है वो बोला जाता है। एंड वो क्या काम करते हैं? उनका काम, वो क्या काम करते हैं? वो भी सेम करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरह। वहाँ पे भी फार्मिंग की जाती है, फिशिंग की जाती है, एंड हंटिंग की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? फार्मिंग की जाती है, फिशिंग की जाती है, और हंटिंग जो है वो की जाती है। और फार्मिंग से वो कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं? वो लगाते हैं राइस, मेज, कॉटन एंड मिलेट्स। ठीक
ठीक है, कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं वो लोग? राइस, मेज, कॉटन एंड मिलेट्स, ठीक है। और अगर वहाँ की इंडस्ट्रीज की बात की जाए, मेन इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? हैंडलूम वीविंग, एंड सेरिकल्चर, ठीक है। कौन कौन सी मेन इंडस्ट्रीज है वहाँ की? हैंडलूम, वीविंग एंड सेरिकल्चर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वहाँ के लोगों की ड्रेस क्या है, ठीक है। तो इन सभी स्टेट्स की ड्रेस जो है ना वो कॉमन है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हम जब से बात कर रहे हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, तो हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, हर स्टेट में आपने देखा होगा कि वो कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। कैसी ड्रेस पहनते हैं? कलरफुल, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो सेम नागालैंड का भी यही है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, कलरफुल ड्रेस, और उसको डेकोरेट किया जाता है पंखों के साथ, फेदर्स के साथ, डेकोरेटेड विद फेदर्स, ठीक है ना। जो पक्षियों के पंख होते हैं उनके साथ उनको क्या किया जाता है, फिर डेकोरेट किया जाता है, पर पहनते वो भी कलरफुल ड्रेसेस ही हैं, ठीक है। और वो क्या खाते हैं? फूड क्या है उन लोगों का? दे ईट पॉर्क, राइस एंड फिश। पॉर्क होता है जो पिग होता है ना, पिग का जो मांस होता है, पिग को मार के ये लोग खाते हैं, ठीक है, उसको पॉर्क बोला जाता है, ठीक है। तो क्या खाना खाते हैं ये? पॉर्क खाते हैं, राइस खाते हैं और फिश खाते हैं। क्या खाते हैं? फिश खाते हैं। और ड्रिंक में ये लोग क्या पीते हैं? ड्रिंक में ये लोग राइस बियर, चावलों से बनी हुई बियर पीते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? जू। क्या बोला जाता है? जू, ठीक है। So this is all about your next state, that is नागालैंड। तो नागालैंड क्या है? एक हिली स्टेट है और ये थिकली फॉरेस्टेड है, मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। और नागालैंड के लोगों को नागास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नागास, ठीक है। और नागालैंड के लोग जो हैं ये क्या करते हैं, ये कौन सा, इनके ऑक्यूपेशन क्या है? इनके ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, फिशिंग एंड हंटिंग, ठीक है। क्या ऑक्यूपेशन है इनकी? फार्मिंग, फिशिंग एंड हंटिंग। एंड तो फार्मिंग दे ग्रो राइस, मेज, कॉटन एंड मिलेट्स। एंड द मेन इंडस्ट्रीज इन नागालैंड आर हैंडलूम वीविंग एंड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, कि रेशम के कीड़े जो पालने का जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर, ठीक है। उसके बाद हमने बात की इनकी ड्रेस की, तो ये लोग भी क्या करते हैं? कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, और कलरफुल ड्रेस को फिर ये फेदर्स के साथ डेकोरेट करते हैं और उसे पहनते हैं, ठीक है। खाने में ये लोग पॉर्क खाते हैं, राइस खाते हैं और फिश खाते हैं। और ड्रिंक ये लोग कहते हैं राइस बियर, राइस बियर पीते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? जू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ नागालैंड। After Nagaland, now we will discuss about the next state, that is मणिपुर, ठीक है। अब हम मणिपुर के बारे में करेंगे, ठीक है। तो मणिपुर का मतलब क्या होता है? मणिपुर का मतलब होता है द ज्वेल्ड लैंड, कि वो लैंड जहाँ पे बहुत सारे ज्वेल्स जो है वो
पाए जाते हैं, हीरे मोती वगैरह जिनको हम बोलते हैं वो। मनी से बना है ना इसका नाम मणिपुर, तो मनी भी क्या है, एक ज्वेल है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, मणिपुर का मतलब है द ज्वेल्ड लैंड। तो मणिपुर जो है, मणिपुर के सराउंडिंग में बहुत सारी क्या है, स्टेट्स हैं, ठीक है, मणिपुर के सराउंडिंग में बहुत सारी स्टेट्स हैं। वो मणिपुर कौन कौन से स्टेट से घिरा हुआ है, वो है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड है, मिजोरम है, असम है एंड म्यांमार है, ठीक है। मणिपुर इज सराउंडेड बाय different states, and these states are Nagaland, Mizoram, Assam and Myanmar, ठीक है। and Manipur has 9 districts। मणिपुर के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर के? मणिपुर के 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कौन कौन से हैं वो? बिशनपुर, चंदेल, चूड़ाचंदपुर, ठीक है, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, ठीक है, आफ्टर दैट सेनापति, तमेंगलोंग, थोबल एंड उखरुल, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स? बिशनपुर, चंदेल, चूड़ाचंदपुर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, सेनापति, तमेंगलोंग, थोबल एंड उखरुल, ठीक है। दीज आर द 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन मणिपुर, ठीक है। एंड द मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, ठीक है। And through farming they grew crops like